Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again, and this time it is for something which is absolutely new. Well, because the subject is new. So what subject are we starting today? Secretarial practice. Okay, so if you are in Maharashtra board, if you have reached SYJC, and if you are not a math student, तो आपको SP नाम का सब्जेक्ट डेफिनेटली होने वाला है. तो आज इसकी हम शुरुआत करते हैं. सो जस्ट लाइक अदर सब्जेक्ट्स की मैं शुरुआत करता हूँ. पहले आपको पूरा आइडिया देता हूँ कि आपके वो टेक्स्ट बुक में आपको क्या क्या मिल सकता है. वेल, पक्का मिलेगा, बट उस आप क्या एक्सपेक्ट करते हो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर. नाउ व्हेन वी यूज द वर्ड secretary, because from the word secretary you get secretarial practice. Okay, what comes to your mind? Well, many of us, गलत नहीं होगा, because they have seen in movies or in TV serials कि एक secretary is some pretty girl, okay, जो बॉस के कैबिन के बाहर बैठती है. ओके, एंड सेक्रेटरी का कुछ काम कम करती है. ओके, बट शी मेक्स श्योर के कॉल्स लेना है उनको, बॉस तक मैसेजेस उनको देने हैं. येस, दैट इज़ ऑल्सो अ सेक्रेटरी, बट वो बॉस की सेक्रेटरी है. वी आर नॉट, यू आर नॉट विद दिस सब्जेक्ट गोइंग टू बी ट्रेन्ड टू बी द सेक्रेटरी ऑफ अ बॉस. एब्सोल्युटली नॉट. ओके, you will be the boss, because this subject depends upon your knowledge, or giving you knowledge of a company secretary. That's very very important. We are not talking about a chota dukan, a chota office with a boss and a secretary of that boss. Absolutely no. वो भी एक secretary होता है, but उसकी ट्रेनिंग हम आपको नहीं देने वाले, या तो ये सब्जेक्ट नहीं देने वाला. This subject is going to teach you. This subject is going to train you. Firstly, who is a company secretary, okay, and what are his features, his attributes. Again, don't say अच्छा सर वो ऐसा सूट में आदमी रहता है, आदमी होता है. नहीं, ऐसा नहीं है. आदमी औरत कुछ भी हो सकता है, बट एक कंपनी में एक ही सेक्रेटरी होता है. अगर 10 बॉस है, 10 सेक्रेटरी, बिल्कुल नहीं. कंपनी में एक ही सेक्रेटरी होता है. उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, आप सेक्रेटरी कैसे बन सकते हो, वो सारी चीज़ें ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पढ़ाई जाएगी. सो जैसे ही ये सब्जेक्ट की शुरुआत आप करो,
द वेरी फर्स्ट 2-3 पेजेस में ना आपको उसका प्रीफेस नजर आएगा और उसमें कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या दिया आप ये मतलब ये सब्जेक्ट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द कॉमर्स स्ट्रीम, ऑब्वियसली ना यू आर इन दैट, विच डील्स एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव मतलब कैन नॉट विद एनीवन टॉपिक मैटर विद द बिजनेस largest and the most popular form of commercial enterprise. जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? ये सब्जेक्ट ओके आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत कुछ समझाएगा। और एक और बात, द सब्जेक्ट derives the contents from the Companies Act 2013। कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी को कैसे चलाए, मेरी मर्जी चलेगी, मैं ड्राइवर हूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तू ड्राइवर है, गाड़ी का मालिक तो दूसरा कोई है। कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होता है? कौन से टाइप के शेयर्स लिए इन्होंने, कैसे ये मालिक बन गए? हाँ बाबा सिखाएंगे, आप सीखोगे। ये जैसे ही सब्जेक्ट आगे जाएगा यू विल लर्न एवरीथिंग। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दिस सब्जेक्ट एंड द इंफॉर्मेशन इन दिस सब्जेक्ट इज नॉट हवे में। नो नो नो, कंपनीज एक्ट 2013 लिखा गया है कानून पूरे देश के लिए, जो पूरे देश में कानून चलता है वही आपको पढ़ाया जाएगा। ओके नेक्स्ट, क्या मुझे पता होना चाहिए? इंडेक्स के आपको, बिकॉज आधे तो बच्चे अगर टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करें देन यू विल फिनिश एवरीथिंग, बट मेनी चिल्ड्रन आर लाइक नहीं सर वो थोड़ा लेट हो गया सर, थोड़ा आई वॉज लेजी सर। सी दैट शुड नॉट हैपन। दिस इज अ ईयर विच इज़ अ बोर्ड ईयर। ओके, तो योर फ्यूचर 3 साल की पढ़ाई, स्पेशली अगर आपका एकेडमिक्स कंटिन्यू होगा एंड द कोर्स दैट यू टेक डिपेंड्स अपॉन हाउ मच ऑफ एफर्ट्स, मेहनत यू हैव पुट इनटू दिस पर्टिकुलर ईयर स्पेशली। ओके हाँ, मतलब आई एम होपिंग कि आप मेहनत करो और आप ये सब पढ़ो, ऑल ऑफ दैट विथ मी, थोड़ा थोड़ा करके वी विल, हमारी गाड़ी आगे जाएगी। बट राइट नाउ व्हाट आई एम एक्सप्लेन टू यू कि आई विल डू इट, you also have to, you have got 12 topics now, one by one let me spend one minute, I'll do my best, introduction to corporate finance। ये मेरे ऊपर लिखा है। अच्छा, what am I going to learn in this introduction to corporate finance? corporate का मतलब क्या है? अरे जॉइंट स्टॉक कंपनी को आप बोल सकते हो corporate, corporation। ओके, उसके अंदर अ फ्यू थिंग्स इज व्हाट यू विल लर्न। तो अगर आप थोड़ा ऊपर देखो, फॉन्ट थोड़ा कम है। मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक कंपनी को कैपिटल मतलब पैसा, कौन से टाइप का पैसा लगता है ऊपर दिया गया है, फिक्स्ड, वर्किंग कैपिटल। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर आपको समझाया जाएगा। ओके, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। राइट नाउ मेनी ऑफ यू वुड बी sir, I'm not understanding what's capital requirement, I'm not understanding what is capital structure। घर होता है ना, घर का एक स्ट्रक्चर होता है ना। is a house or a building only made with bricks? No, there is a flooring, okay, there are columns, beams, and there are bricks, and there is cement and sand, and there is design, there are a lot more things। structure, तुम्हारा घर कैसे बना, तुम्हारी बिल्डिंग कैसे बनी, वैसे ये कंपनी कैसे बनी, अरे बाबा कैपिटल से बनी। ओके, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हाँ तो वो समझने के लिए तो ये चैप्टर उन लोग हमको बताएंगे, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विथ द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस मनी बाय अ कॉर्पोरेशन। आगे, इट डील्स विथ financing the activities of the corporation, capital structuring and making investment decisions. During this SP subject, the various chapters are going to train you and teach you that पैसा कहाँ से लाया, चलो पैसा आ गया, पैसा का यूज आपने कैसे किया, ओके, और आपने कहाँ पर वो पैसा निवेश किया, इन्वेस्ट किया। इट विल टीच यू एवरीथिंग। सो आई रिपीट, बड़े बड़े कंपनीज कुछ इस तरह बड़े बड़े बिल्डिंग्स में दिखते हैं। ओके, और वहाँ पे पैसा आपको कैसे कलेक्ट करना है,
उसका ज्ञान आपको दिया जाएगा. Money, whether that is an Indian company or a company which exists abroad, that is what is corporate finance. के कंपनी के लिए पैसे का बंदोबस्त कहाँ से हो सकता है. ओके, अब ये चीज़ थोड़ा और डिटेल में आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. ओके, मीनिंग टू से कंपनी पैसा कहाँ से ले सकती है. अरे बहुत सारे सोर्सेज है. ओके, बहुत से दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं. इधर जाके नॉक करो पैसा मिल सकता है, उधर जाके नॉक करो पैसा मिल सकता है. तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 2, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इट इज लाइक ये नदी बह रही है. हाँ, नदी, रिवर इज फ्लोइंग. इसका सोर्स कहाँ पर है? स्टार्ट होता है ना कहाँ से. हाँ, उसी तरह कंपनी में पैसा तो आया, कहाँ से आया? सोर्सेस. अच्छा, सो अबाउ यू कैन सी, and in this what are you going to learn? Different types of capital. See, basically if you're buying a house, छोटा घर, बड़ा घर, गाड़ी, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ओके, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, पैसा लगेगा ना. ओके, पैसा कहाँ से आएगा? देखो भाई, इधर लिखा है ना एक्सटर्नल इंटरनल, बाकी और बहुत कुछ लिखा है, बट राइट नाउ लेट्स जस्ट पे अटेंशन ऑन एक्सटर्नल इंटरनल. ये व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल इंटरनल? ये देखना, इंटरनल एक्सटर्नल, लाइन के इस तरफ, लाइन के उस तरफ. देख, इंटरनल का मतलब है परिवार वाले. वो मैंने ना दादाजी से पैसे ले लिए, मैंने ना मामा से, काका से, चाचा से पैसे ले लिए, वो तो अपनी फैमिली हो गई. इंटरनल सोर्सेस. एंड ये देख, कभी कभी ना वो जो देखो बाहर खड़े हैं, लाइन में खड़े, उनके साथ अपना कोई पहचान नहीं, बट पैसे वाले हैं, वो लोग भी मेरा हेल्प कर सकते हैं. ओके, डेफिनेटली वो लोग आपका हेल्प कर सकते हो. तो इन सोर्सेस देयर आर 2 सोर्सेस, घर के अंदर और घर के बाहर. एंड ऑब्वियसली दिस इज जस्ट मी ट्राइंग टू मेक इट लिटिल सिंपल फॉर यू, बट इन डिटेल वी विल अंडरस्टैंड. ये घर के बाहर के सोर्सेस का नाम क्या होता है, घर के बाहर अंदर के सोर्सेस का नाम क्या होता है, दैट विल बी चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 3, अभी ये सोर्सेज एक्चुअली स्टार्ट हो गए. ओके, तो अभी हम लोग माइक्रोस्कोपिक डिटेल के अंदर जाएंगे. सो योर फर्स्ट इज गोइंग टू बी इशू ऑफ शेयर्स. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेस of a company receiving money is by selling shares. उसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स. सो इफ यू नोटिस दैट कि कंपनी के पास शेयर है, वो कंपनी पब्लिक को बेचेगी, वो पब्लिक क्या देगी? पैसा देगी. ओके, सिंपल प्रोसेस नहीं है. इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिटेल्ड एंड अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. क्योंकि इफ योर कंपनी इज गुड, बढ़िया है, वेरी गुड, तो खरीदने वाले बहुत है. शेयर्स खरीदने वाले, आपके कंपनी के शेयर्स को खरीदने वाले, खरीदार अनेक मिलेगी. तो नाउ इट इज लाइक, देखो यार, मैच होने वाली है, आईपीएल का मैच, मेरे पास 5 टिकट है, बट बिकॉज इट इज अ वेरी मेन मैच ऑफ 2 वेरी जबरदस्त टीम, मैं तो एक ही टिकट पे जाऊंगा. 4 फ्री है, 4 टिकट्स आर फ्री, किसको दूं? ओके, मैंने ऐसा मैसेज भेजा, 40 लोगों ने बोला नहीं मेरे को देना, नहीं मेरे को देना, नहीं मेरे को देना, नहीं मेरे को देना. अब यार मेरे को सोचना पड़ेगा किसको मैं ये टिकट्स दूं. अलॉट. तो आई रिपीट, इन इशू ऑफ शेयर्स यू विल लर्न शेयर्स आर सोल्ड कैसे. अलॉट मतलब किसको शेयर्स दिया जाता है, अलॉटमेंट का प्रोसीजर. क्योंकि है तो 4 टिकट, 40 लोगों ने बोला है नहीं मेरे को भी टिकट दो, मेरे को भी टिकट दो, सबको थोड़ी दे सकता हूँ मैं, सिर्फ 4 लोग को मैं दे सकता हूँ, बाकी 36 को मेरे को रिफ्यूज करना पड़ेगा. ओके, यू विल ऑल्सो लर्न, ऊपर आप देख सकते हो इधर फॉरफीचर, सरेंडर, ट्रांसफर. व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर? देख, जब वो कपल के बीच में ब्रेक ऑफ होता है ना, ब्रेक ऑफ, रिश्ता टूट जाता है, उसको फॉरफीचर बोलते हैं. सरेंडर का मतलब क्या है? ओके, दूसरे देश की आर्मी, नहीं हम झगड़ा नहीं कर सकते आपसे, सरेंडर. ओके, ट्रांसफर, देखो दैट इज जस्ट पुटिंग इट इन वर्ल्डली टर्म्स, दुनिया के शब्दों में. बट शेयर्स का
फॉरफीचर होता है. व्हाट इज फॉरफीचर? शेयर्स का सरेंडर होता है. सरेंडर क्या होता है? ट्रांसफर होता है. दैट इज द बेस्ट थिंग. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रीजन के शेयर्स इतने फेमस क्यों है. क्यों? ये वो शेयर्स तेरे पास थे, अभी 2 दिन बाद उसके पास उसके नाम में चलेगी, 3 दिन बाद उसके नाम में चलेगी. ये ट्रांसफर होते रहता है. यस रे, बहुत सिंपल है ट्रांसफर करना शेयर्स. एक फीचर है उसका. यू विल लर्न द मीनिंग एंड द प्रोसीजर्स एंड द रेगुलेशंस दैट यू आर सपोज टू फॉलो इन चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 4 ऑलमोस्ट सिमिलर. क्या? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. ये डिबेंचर्स क्या होते हैं? डोंट वरी माय डियर, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू बी लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? हाँ, इतना मैं बोल सकता हूं कि वो डेप्ट होता है. डेप्ट का मतलब क्या होता है? शेयर्स कंपनी के मालिक का पैसा होता है, बट डिबेंचर कंपनी के कर्जे, जो कंपनी को कर्जा देती है, डेप्ट उनके तरफ से आया हुआ पैसा होता है. ओके, तो एक अपनों के तरफ से, एक गैरों के तरफ से, आप ऐसा कह सकते हो. सो you will learn all the details of debentures, the type of debentures, the procedure of selling the debentures in the chapter of issue of debentures. ट्रैक चेंज हो जाएगा. ऑल ऑफ दिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ पे दिए गए हैं? वो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में बनानी है. वो बहुत पुराना है. 2013 में उसको रिवैम्प किया गया, उसको पूरी तरह से एक मेकओवर दिया गया, उसको मॉडर्न बनाया गया है. ओके, और कंपनी पैसा कहाँ से जमा कर सकती है? देख, शेयर्स बेच सकती है, इसके पहले के चैप्टर में था. देख, वो डिबेंचर्स बेच सकती है, इसके पहले के चैप्टर में था. या तो ना वो डिपॉजिट भी बेच सकती है. वेल, बेच नहीं सकती है, वो पब्लिक को, वो लोगों को बोल सकती है कि आप मेरे कंपनी में पैसा डिपॉजिट करो ना. कौन? देखो, वो ना ये रास्ते पे चलते हुए लोगों को, बाहर वालों को, इनसे मांग सकती है डिपॉजिट, या अपने लोगों से मांग सकती है जो मीटिंग्स में आते हैं ना, क्लासरूम में, क्लास में अटेंड करते हैं. सो आई रिपीट, दिस चैप्टर 1 will teach you the meaning of corporate finance. Chapter 2 will tell you the sources, and then वो sources पे माइक्रोस्कोपिक चर्चा, डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में है. शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स. कंपनी को पैसा कहाँ से मिल सकता है? शेयर से मिल सकती है, डिबेंचर से आ सकता है, या डिपॉजिट से आ सकता है. ओके, ये आपको 1 से लेके 5 चैप्टर कवर कर लेगा. कीप दिस इन माइंड. हाँ, चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं थोड़ा जंप करके आपको कुछ बता रहा हूँ. ओके, ये आपका पेपर का फॉर्मेट है. आई कम टू द पेपर फॉर्मेट इन लिटिल बिट ऑफ टाइम. मैं आपको वेटेज बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन सी अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट एन 80 मार्क्स पेपर. ओके, अबाउट 1 and 2, जिसके अंदर चैप्टर्स 1, लेट मी पॉइंट आउट, 1, 2, 3, 4, 5, that means the 5 topics that I have just discussed, वो आप कितने मार्क्स के लिए सॉल्व करोगे? 17 and 24, 40 प्लस मार्क्स. 40 प्लस मार्क्स. 80 में से the first 5 chapters are for half. So you can understand, or if you did not, अभी समझ लो how important are your first 5 topics. You must give, because again many students, सर वो कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ूँ, सर कौन सा टॉपिक ओमिट करूँ. देखो, मैं उसके बारे में कोई सजेशन, सुझाव आपको अभी नहीं दे रहा, बट येस, आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू कि इफ़ यू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1 एंड यू मेक श्योर यू कंप्लीट chapter number 5, 1, 2, 3, 4, 5, because you are then going to equip yourself with the confidence of 40 marks, minimum 40 marks. Okay, so just ये बताना था मुझे आपको. चलो भाई, कंटिन्यू करते हैं. Okay, after you have done deposits, उसके बाद में क्या करना है? ओ, कबूतर. ये सर मतलब कबूतर उड़ाना हमको सीखना है. ओ, कबूतर मैसेज लेके जाता है, चिट्ठी लेकर जाता है, तो मतलब सर आई डिडंट अंडरस्टैंड कबूतर का कनेक्शन. हाँ भाई, सेक्रेटरी इज नॉट अ कबूतर, बट कबूतर का एक काम, दैट इज कॉरस्पॉन्डेंस, चिट्ठी, लेटर. अच्छा, किसको लेटर लिखना है?
बिकॉज मैनी पीपल से सर ये एसपी सब्जेक्ट है ना, इसमें बहुत लेटर लिखना पड़ता है। हाँ गलत नहीं है, बट हम कोई व्हाट डू यू कॉल एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच के लेटर नहीं लिख रहे। ओके यहाँ पर ऑफिशियल लेटर लिखा जा रहा है। टू हुम? देखो कुछ लोगों ने शेयर्स खरीद के पैसे दिए, कुछ लोगों ने डिबेंचर्स खरीद के पैसे दिए, कुछ लोगों ने डिपॉजिट करके पैसे दिए हैं। तो ऐसा थोड़ी था वो आए पैसे देकर गए। नो, देयर वाज अ प्रोसीजर फॉलोड। ओके, द सेक्रेटरीज जॉब इज टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद दीज पीपल। हाउ? थ्रू लेटर्स। ओके, वो रिटर्न होना चाहिए, भले ही नाउडेज वाया ईमेल हो सकता है ये काम, बट मैं अभी एकदम मॉडर्न नहीं बात कर रहा हूँ। जब ये लेटर राइटिंग स्टाइल में था, ओके, कॉरस्पॉन्डेंस, देयर वाज सम राइटिंग, सर्टिफिकेट्स वर मेड। ओके, तब तक वन ऑफ द मेजर जिम्मेदारी ऑफ अ सेक्रेटरी was to talk to members। ओके, मेंबर्स के साथ क्या बात करना है? देखो, जो भी बात करना है इन वेरियस सर्कमस्टेंसेस। देखो, जब भी मैंने बोला था ना 4 टिकट्स 40 पीपल, आई मीन ओनली 4 पीपल को क्या मिलेगी? वो जब न्यूज़ मिलेगा ना उन लोगों को टिकट के बारे में, या तो हालत ऐसे हो जाएगा या तो हालत ऐसे हो जाएगा। 4 of them would be very happy, remaining 36 would start to cry। हाँ, तो आई रिपीट माई सेल्फ, वो जो लेटर लिखा है ना सेक्रेटरी ने, उसके बाद में मेंबर्स को कभी खुशी कभी गम। शेयर्स मिला तो लेटर में रहेगा, शेयर्स मिलने से रिजेक्ट किया गया लेटर में, कॉरस्पॉन्डेंस में रहेगा। इट इज़ द सेक्रेटरीज जॉब, well, not to make somebody happy or sad, but his correspondence will make somebody happy or sad, because good companies shares are a lot in demand. Many people want to buy the shares, everybody can't buy it, so somebody will get it, somebody won't get it. Just like if you go to a CoWIN website to register yourself and then try to book an appointment for a vaccination, 99% you will not get it। क्यों? Everybody is wanting to, सबको बुक करना है। हाँ, तो भाई मैंने खुद 30 बार ट्राई किया है, मिला ही नहीं अभी तक। ओके, तो मेरा थोड़ा मैडम की तरह, उस तरफ वाले मैडम की तरह सिचुएशन है। आई होप सो जल्दी ये मैडम की तरह हमारा सिचुएशन हो जाए। तो ये कॉरस्पॉन्डेंस, ये लेटरबाजी किसके साथ? मेंबर्स के साथ। किस तरह के लेटर लिखने हैं, कौन सी परिस्थिति में, कौन से सर्कमस्टेंसेस में लेटर लिखने हैं, ये सब आपको ये चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। फिर डिबेंचर होल्डर्स के साथ में किस परिस्थिति में लेटर्स लिखने हैं, कब, किस तरह का, क्या वर्डिंग्स उसके अंदर आने वाला है, ये सब एक सेक्रेटरी का काम होता है। एंड फिर डिपॉजिटर्स के साथ। तो आई रिपीट, चैप्टर 3, 4, 5 और शेयर्स, that is connected to shareholders, debentures connected to debenture holders, they are people, persons, and deposits connected to depositors। Okay, but with these persons, how do I talk? What should be the language? What should I write in the letter? Everything will be taught to you in these chapters, that is 6, 7 and 8। Okay, so I hope लेटरबाजी चलेगी, वो लेटर के स्पेसिमेंस, वो लेटर में क्या होना चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं, एवरीथिंग विल बी taught to you because you are a company secretary in training। Next, now some general chapters। What is a depository system in India? If you don't know, sir, I've not heard about a depository system, my dear, it is all connected to the financial market because we are talking about companies' finances। ऑब्वियसली, तो लड्डू पेड़े की तो बात नहीं कर रहे, या फिर मैं आपको कोई बूंदी लड्डू बनाने का तो रेसिपी बनाने वाला नहीं हूँ। ओके, सो डिपॉजिटरी सिस्टम होता क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके फ़ायदे क्या होते हैं। ओके, डीमैट अकाउंट
क्या होता है, क्योंकि एक डिपॉजिटरी सिस्टम में अगर आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी. नाउ यू मे से सो उसका मतलब क्या होता है? डीमैट अकाउंट इज a little similar to a bank account, little similar. How do I start a demat account? What paper do I have to fill? What documents will be required for that? Everything will be taught to you when we learn a depository system. In India, two of the more famous depositories are NSDL, National Securities Depository Limited, or CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड. इंडिया में ये दो नेशनल लेवल पे काम करते हैं. ये कौन है, कहाँ पर सिचुएटेड है, इनके फंक्शंस क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये कैसा काम करते हैं, एवरीथिंग विल बी थॉट व्हेन वी लर्न द डिपॉजिटरी सिस्टम दैट इज अवेलेबल, दैट रन्स ऑपरेट्स इन आ कंट्री. ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पर कुछ चर्चा करेंगे हम. डिविडेंड इंटरेस्ट क्या होता है? देख भाई, सीधी सी बात है, यू स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट एंड द कॉन्सेंट्रेशन एंड द फोकस इज ऑन पैसा, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. एक चैप्टर है विच विल टीच यू इंटरनल बंदे से पैसा लिया, एक्सटर्नल आदमी से पैसा लिया, बट प्लीज इतना याद रख, पैसा किसी से भी लिया वो कभी फ्री का नहीं है. नहीं, आई टुक फ्रॉम माई अंकल, आई टुक फ्रॉम माई चाचा चाची, दे उन लोग मेरे लिए जान देते हैं, वो उन लोग मेरे से कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट नहीं लेंगे. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड. थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है समझने का, बट मनी इज नेवर फ्री. देर इज अ कॉस्ट टू मनी. पैसा उत्पन्न करने का, किसी से लेने का पैसा, उस पे एक कॉस्ट होता ही है. कभी वो कॉस्ट आंखों के सामने नजर आएगा या कभी नजर नहीं आएगा, कभी वो अंदर से फीलिंग देगा. देयर इज अ कॉस्ट. इफ यू टेक मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स यू हैव टू गिव देम डिविडेंड, बट इफ यू टेक मनी फ्रॉम आउटसाइडर्स, लोन, यू हैव टू गिव देम इंटरेस्ट. देख भाई, पैसा तेरा नहीं है, दूसरे का है. यू हैव टू गिव मनी, यू हैव टू पे समथिंग एक्स्ट्रा टू देम. You can pay dividend or you can pay interest. So what are the कानून connected to dividend and interest? अच्छा, डिविडेंड मतलब कितना भी डिविडेंड देने का, ये इंटरेस्ट मतलब कोई भी इंटरेस्ट देने का नहीं. पूरा रूल एंड रेगुलेशन कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है. दैट विल बी थॉट टू यू, एक्सप्लेन टू यू, गिवन टू यू व्हेन यू डू डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. इट इज ऑल कनेक्टेड टू मनी. ओके, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? अरे बाबा, तुमने भाजी मार्केट देखा रहेगा, तुमने कपड़े का मार्केट देखा रहेगा, बट भाजी मार्केट में भाजी मिलेगा, कपड़े के मार्केट में कपड़ा मिलेगा, जूते के मार्केट में जूता मिलेगा. ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा. फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मिलेगी. व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? शेयर्स, डिबेंचर्स, deposits, these are financial instruments. Okay, do remember, do know that after your 12th standard you have a course which is, if I'm not mistaken, BFM, Bachelor of Financial Market. So 3 years your full training will only be what is financial markets. होता क्या है? ओके, देखो भाई, फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है. एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट. आई रिपीट माई सेल्फ, दो तरीके का होता है. एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल. कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट होता है. दिस इज नॉट योर लोकल भाजी मार्केट और फिश मार्केट और वेज और नॉन वेज मार्केट, बिल्कुल नहीं. वहाँ पे उस मार्केट की चीज़ें मिलेगी. फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंस आपको मिलेगा. व्हाट इज अ मार्केट? अ मार्केट इज अ प्लेस, खरीदार, बेचने वाला और खरीदने वाला ग्राहक एक साथ आते हैं. तो फाइनेंशियल मार्केट भी तो एक जगह है. वह जिसको पैसा चाहिए और जिसके पास पैसे है वो एक जगह पे आएंगे. बट नाउ ऑब्वियसली दे विल टॉक अबाउट ओनली मनी, अबाउट फाइनेंसेस, कि भाई आपको पैसे चाहिए, मेरे ये शर्त है आपको पैसे देने के लिए. सो ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड later on in the chapter of financial market. Then
Moving on, our last chapter will end with stock exchange. What do you mean by stock exchange? आप लोगों ने, well, if you are staying in the city of Bombay, आपने definitely BSC Bombay Stock Exchange के बारे में सुना रहेगा. There are so many channels dedicated full day only teaching, or rather, well, not teaching as such, but showing you कि Bombay Stock Exchange में चल क्या रहा है. Many a times words are used. What? Being bullish, being bearish. ये बुल क्या है, ये बेयर क्या है, डोंट वरी, इन दिस चैप्टर आपको वो भी समझाएंगे. ये हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फ्रंट व्यू. ओके, क्या होता है, किधर है, उसके अंदर क्या होता है, प्रोसीजर्स क्या है, everything is going to be explained to you. And if you are watching movies, serials, so there are many famous people, well, गलत काम करके फेमस हुए हैं, जिन्होंने ये ही स्टॉक एक्सचेंजेस में काफ़ी लोगों को पट्टी पढ़ाई है और बड़े बड़े स्कैम्स किए हैं. कुछ लोगों का यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, बट दैट इज़ द रीज़न सेबी was made, Securities and Exchange Board of India. When in this subject the word securities is used, please don't think, sir, the security guard of my building, नहीं रे, वॉचमैन की बात नहीं कर रहे. The word securities means your investments, shares, debentures, deposits. Okay, investments होते हैं. तो there is an establishment, an institution, सेबी, जो शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है. ये स्टॉक एक्सचेंजेस कैसे चलने चाहिए, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस. कोई अगर गड़बड़ करेगा, उसका पनिशमेंट क्या होना चाहिए, उसको कैसे पकड़ा जाना चाहिए, सेबी, सारी जिम्मेदारी सेबी की है. तो व्हाट इज सेबी, कब बना, क्या फंक्शनैलिटीज़ है, कितने लोग सेबी में रहते हैं, क्या कानून है उसके, एवरीथिंग विल बी लर्नड व्हेन वी डू लेटर ऑन लर्न स्टॉक एक्सचेंज. सो इन ऑल माय डिस्कशन I have gone through 12 chapters, but they are categorized into units. So 1 and 2 is chapter number 1, 2, 3, 4, 5 units, and then there is correspondence. There are 3 chapters in that. There is depository system, which is one iklota chapter. Then there is payment of dividend and interest, that is again one chapter. फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ही स्टॉक एक्सचेंज भी आता है और सेबी भी आ जाएगा. अगेन वेटेज वहाँ पे क्लियरली दिया गया है, उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितना सिग्निफिकेंस रखता है. राइट नाउ दिस बिहाइंड मी इज़ योर 80 मार्क्स फॉर्मेट ऑफ अ क्वेश्चन पेपर. तो अगर आप ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव्स तो होते ही हैं. There is explain the following terms, तो kind of definition आपको पूछा जाएगा. Study the following case, this is very important. Situation and express your opinion. So मैंने थोड़े टाइम पहले दिखाए थे कुछ frauds जो stock exchange में हुए हैं. So they will give you a practical situation. एक कहानी देगी और उस कहानी के ऊपर वो आपकी टिप्पणी मांगेंगे. जैसे क्रिकेट मैच पे कमेंट्री होती है ना, टिप्पणी, उसी तरह वो कहानी देंगे. एंड दे विल आस्क यू कि ये क्या, आपको क्या लगता है इस बारे में, यहाँ पे क्या होना चाहिए था. सो दे आर आस्किंग यू टू गिव योर ओपिनियन. ओके, डिस्टिंक्शन बिटवीन है, ऊपर जाएंगे. सॉरी, देयर इज आंसर इन ब्रीफ. अगेन डू नोट the marks per question. Justify the following statement, सही है, गलत है. Attempt the following, letter writing. So you have correspondence के 3 चैप्टर है, तो वो 3 चैप्टर का नॉलेज आपको क्वेश्चन नंबर 7 में काम आएगा ऊपर, और लॉन्ग आंसर लास्टली. ओके, सो दिस इज द what you call format. I'll do one thing. I'm no longer on screen. You can take a screenshot and you can preserve this so that you exactly know कि आपका SP का format किस तरह है. Coming back on screen. Okay, and
again very quickly to tell you, it's going to be a long journey, ubad ghabad, up down. I'll do my best to cover up all the matter. चुटकी बजा के नहीं होगा because that's not my style, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, बट आई डू माई बेस्ट दैट वट एवर आई एक्सप्लेन वो थोड़ा ही सही बट आपको पूरा समझ में आ जाएगा. वी विल गो फ्रॉम द टॉप टिल दी and in the course of that I will be covering up 12 chapters in the subject of secretarial practice. okay, तो प्लीज़ वो जो लेडी सेक्रेटरी है ना वो इमेज निकाल लो. okay, you can in India be a professional by doing a chartered accountancy course, as well as you can be a professional by doing the company secretary course. उतना ही importance, उतना ही सिग्निफिकेंस ये कोर्स को भी दिया जाता है. ओके, बाकी की डिटेल्स एज इन व्हेन हमारा ये सब्जेक्ट और उसका फर्स्ट चैप्टर हम आगे स्टार्ट करें. तो जल्द से याद दिला देता हूँ, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक द लेक्चर, शेयर इट विथ as many of your friends as possible, relatives as possible. उनका GPS geography मैटर करता नहीं. if they are doing this subject, प्लीज़ उन तक ये खबर ज़रूर पहुंचा दीजिए. सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया दबा दीजिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. टिल द टाइम वी मीट अगेन, स्टे सेफ, stay protected. if possible do stay indoors. I will meet you very soon with the continuation. तब तक के लिए good day and God bless. Bye.